یہ قرآن جس شہر میں نازل ہو جائے تو وہ تمام شہروں کی سردار بن جائے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کی لقب سے نوازا دیا گیا ہے. یہ قرآن جس نبی پر اتر جائے تو وہ نبی کو رحمت للعالمین سے نوازا گیا. یہ قرآن جس امت پر اتر جائے تو اس امت کو کنتم خیر امت، تمام امتوں سے بہتر کر دیا گیا، تمام امتوں سے افضل بنا دیا گیا. پیارے ساتھیوں، سمجھ میں آتا ہے کہ اس لیلۃ القدر اور رمضان کے تعلقات اس لیے کہ اسی بابرکت مہینے کے اندر قرآن کو اتارا، اور قرآن کو اترنے کے بعد اور اس قرآن اور اس مہینے کی تعلقات کو اور دو چند بڑا کر دیا اور اس کی عظمتیں بڑھا کر دی. پیارے ساتھیوں، اس قرآن کو لانے والے، اس قرآن کو پڑھنے والے، اس قرآن جس پر اتارا اور اس قرآن جس بستی میں اتر جائے، ان تمام چیزوں کو یہ بہتر بنا دیتا ہے، سب سے افضل بنا دیتا ہے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو اس قرآن کو پڑھ لیتا ہے، اس قرآن کو عظمتوں سے بلا کر لیتا ہے. پیارے ساتھیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پیارے ساتھیوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو باعزت اور بلا کر کے اتارا، بلا کر کے اتارا، باعزت والی رات میں اتارا. پیارے ساتھیوں، سمجھ میں آیا اس لیلۃ القدر میں اتارنے کی وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ پیارے ساتھیوں، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے لیے وہ لعلکم تتقون سے نوازا جائے. اس قرآن کو پڑھنے والا ہدی للناس سے تعمیر ہو جائے اور اس لیلۃ القدر سے اس کا تعلق ہو جائے، جو اس رات کو پا جاتی ہے اور اس رات کو ڈھونڈ کر پھر اس نے اس رات کی عبادت کر لیتا ہے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پیارے ساتھیوں، اب سامعین، آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے سامعین، اے سننے والو، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو کیا علم ہے؟ پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ادراک، جو قاب نبی کی طرف خطاب کر رہا ہے، نبی کی طرف جا رہا ہے. اے نبی، آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کا مہینہ کیا ہے؟ آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کی وہ رات کیا ہے؟ پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، آپ کو کیا وہ لیلۃ القدر کے بارے میں نہ بتا دوں؟ پیارے ساتھیوں، اس مسئلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علم غیب کا خبر نہ رکھتا. جب تک اللہ بتا نہ دیتا، اس وقت تک اللہ کے رسول کو کوئی بات پتہ نہ چلتا، معلوم نہ ہوتا. پیارے ساتھیوں، سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جبریل کے ذریعے سے بتاتے، وحی کے ذریعے سے بتاتے، تب اللہ کی نبی کو پتا ہوتا. پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. وہ مہینہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، یعنی 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے سے نوازا اور بابرکت والے سے مہینے سے نوازا، اور پھر اسی مہینے کے اندر وہ 5 راتیں ہم پر لا دی جس پر قرآن اتارا، قرآن کو لایا گیا. وہ رات جس پر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر کہا گیا، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل کہا گیا. پیارے ساتھیوں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مہینے میں جب قرآن اتارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے جب آتے تو جبریل علیہ السلام رات میں آتے ہیں، ہم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے اور جبریل ہمیں سناتے. پیارے ساتھیوں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اے لوگوں، جو لیلۃ القدر صوب نیات کے ساتھ اور نیکی کے ثواب سے اپنے رب کو
रब के तकर्रुब को हासिल करने के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए, अपने गुनाहों को रद्द करने के लिए, और उसने इस लैलतुल कद्र की रात को जागा और उसने फिर इबादत की, ये तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देते। प्यारे साथियों, हाँ आज हम रात जागते हैं ठीक है, लेकिन आज हमारे जगने का तरीका अलग हो चुका है। आज हमारे जगने का तरीका अलग हो चुका है। आज हमारे मौसरा के लोग, आज हमारे सोसाइटी के लोग, समाज के लोग, आज हमारे इलाका के लोग, वो रात जागता है सही है, ये बात सही कि वो रात जागता है, लेकिन पूरी रात वो पबजी खेलने में गुजर देते हैं, लूडो खेलने में गुजर देते, गुफ्तगू करने में गुजर देते। आज वो रात हमारे माए बहनें औरतें भी जगती हैं, जगता है, लेकिन उस रात पर वो पूरी मोहल्ले की जब औरतें इकट्ठी होती हैं, ये तो उसने पूरी रात गुफ्तगू में गुजर देती है, चाय और नाश्ते में गुजर देती हैं। प्यारे साथियों, वो माए बहनें ये इकट्ठी होती हैं, किसी की गुजाब करती हैं। प्यारे साथियों, फिर ये मसला उठाता है, ईद के दिन तुम क्या पहनोगी, कौन सी दुपट्टा लाए हो, कौन सी दुकान से खरीदे हो, कितने दाम लिया है, कीमत कितनी है। प्यारे साथियों, इस तरीके की बात करके पूरी रात को खत्म कर देता है। प्यारे साथियों, अल्लाह की नबी की हदीस है, अम्मा आयशा हदीस फरमाती है, अम्मा आयशा हदीस की रावी है, अम्मा आयशा जो 2210 हदीस लिखने वाली रावी, उनमें से एक हदीस ये भी है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा दखल अल-अस्र अहया व लैलन। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अम्मा आयशा बयान करती हैं कि जब आखिरी सूरा शुरू होता, अल्लाह की नबी वो रात को खुद जागते, फिर घर वालों को भी जगाते और खूब कमर बस्तन होकर इबादत करते। प्यारे साथियों, इस हदीस से साबित होता है कि हमें और आपको इस रात को भी जागना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की नबी इस रात को जागता था, दूसरे को जगाते थे और फिर खुद इबादत क्या करते थे, बहुत कंदर के इबादत करते थे, बहुत ही मेहनत करके इबादत क्या करते थे। प्यारे साथियों, अम्मा आयशा की दो रवायतें हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, 2210 हदीस लिखने वाली रावी अम्मा आयशा फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फिल अस्रिल आखिर मा ला यजतहिदु फिल मा ला यजतहिदु गैरुहा। प्यारे साथियों, अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं कि जब आखिरी सूरा शुरू होते, अल्लाह के रसूल इतनी मेहनत कभी न करते हैं जितनी मेहनत आखिरी सूरा के रोजे में, आखिरी सूरा की रात लैलतुल कद्र की रात जागने में करते। प्यारे साथियों, हमें और आपको भी चाहिए कि वो लैलतुल कद्र की रात को जागे और उसकी अच्छी तरीके से फिर इबादत करें और पूरी रात को हम इबादत से गुजारे। अम्मा आयशा का बयान है, अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, जब वो रात हमें ढूंढ ले, हम मालूम हो जाए, पता चल जाए, अल्लाह के रसूल, जब वो रात हमें मालूम चल जाए तो हम उस रात में क्या करें। अम्मा आयशा अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल सवाल का जवाब देते। प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सवाल का जवाब देते हैं, आई मेरी बीबी आयशा, क्या उस रात में तुम क्या पढ़ोगी, मैं बता देता हूँ। प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी आयशा को हदीस बताती, अल्लाहुम्मा इन्नका फुल करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तो बख्शने वाला है, तो रऊफ़ुर रहीम है, तो बख्शने वाला है, तो हर चीज को बख्श देता है। ऐ अल्लाह, तो हर चीज पर बख्शने वाला है, तो हमें भी बख्शाता फरमा। कुरान की तिलावतें करना, पूरी इबादत करना और पूरी रात अल्लाह से फरियाद करते रहना, रोना गिड़गिड़ाना, आज सजदे में अपने सर को झुका देना। प्यारे साथियों, अल्लाह की नबी आयशा को फरमाती हैं, मेरे साथियों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को इस तरह की हदीस फरमाता है, उस रात जब आ जाए ढूंढ लो तो तुम कुरान की तिलावत करना, प्यारे साथियों दुआएं करना, रोना गिड़गिड़ाना। मेरे भाई और हमें और आपको भी अल्लाह से फरियाद करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला खुद कहता है, उदऊनी
उदऊनी अस्तजिब लकुम, आए मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, आए मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। देने के लिए अल्लाह तैयार है, बस मांगने का इंतजार। जब तुम मांग लोगे तो अल्लाह तुम्हें दे देगा। प्यारे साथियों, अल्लाह के अलावा कोई सेवाए माबूद बरक नहीं, क्योंकि अल्लाह एक है और अल्लाह देता है। प्यारे साथियों, हमें मांगना है, हमें लेना है, हमें पुकारना है, तभी तो हमें मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला देने के लिए तैयार है। आइए हिंदू धर्म के अंदर भी आपको बताता हूँ कि अल्लाह एक है और अल्लाह हर चीज का कादिर रखता है, और अल्लाह से जो चीज मांगे जाते हैं दिया जाता है। वेद ऋग्वेद कंडे सुते मंत्र नंबर 13 श्री कृष्ण जी अपने बेटा अर्जुन से कहता है, आए मेरे बेटा अर्जुन, मेरा बेटा अर्जुन, अगर तुम्हें कोई चीज का तलाश करना है, कोई चीज तुम्हें मांगना है, तो एक प्रभु से मांग लेना, एक ईश्वर से मांग लेना जो तुम्हारी झोली को सैराब कर सकता है, जो तुम्हारे झोली को भर सकता है। एक प्रभु से मांग लेना, एक अल्लाह से मांग लेना। श्री कृष्ण जी अपने बेटे अर्जुन से कहता है। प्यारे साथियों, वो क्या कहता है? यचित्यो यो मिम्मा नस्तस्माद बिसुरिरिसा, ऐ मेरे बेटा अर्जुन, एक देवता से मांग लेना, एक अल्लाह से मांग लेना, एक ईश्वर से मांग लेना जो तुम्हारी झोली को भर सकता है। नस्तस्माद बिसुरिरिसा, तुम्हारी झोली को कोई देवता नहीं भर सकता, और कोई देवता नहीं भर सकता। उसके अलावा जो तुम्हारी झोली को भर सकता एक अल्लाह ही भर सकता है। नास्त्य प्रतिमा आस, वो ईश्वर का कोई छवि नहीं है, फोटो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, उससे मांग लेना। जिसका कोई फोटो ना हो, तस्वीर ना हो, उससे मांग लेना। प्यारे साथियों, वेद भी फरमाता है, श्री कृष्ण जी अपने बेटे अर्जुन से कहता है, एक प्रभु से मांग लेना। नास्त्य प्रतिमास, जिसका कोई तस्वीर ना हो, जिसका कोई फोटो ना हो। प्यारे साथियों, क्योंकि श्री कृष्ण जी फरमाता है कि जिस तरह इस्लाम में दाखिल होने के लिए 5 चीज, वो 5 सुतूने बुनियाद होते हैं, उसी तरीके से हिंदू सनातन या शाश्वत धर्म में दाखिल होने के लिए ये 5 चीजों का होना जरूरी है। श्री कृष्ण जी अपने बेटे अर्जुन से कहता है कि कम ब्रह्मा द्वितीय निनास्ते किंचन, कि एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, जरा सा भी नहीं, किंतु भी नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं, जरा सा भी नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐ मेरा बेटा, एक प्रभु है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, जरा सा भी नहीं, किंतु भी नहीं, हरगिज नहीं। देखिए कुरान क्या कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह की सिवा कोई माबूद बरक नहीं है। फिर कुरान क्या कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी को जना है और ना किसी से वो पैदा हुआ है। प्यारे साथियों, ना उसका बेटा है ना बेटी, प्यारे साथियों, ना उसका अब्बा है। प्यारे साथियों, श्री कृष्ण जी अपने बेटे अर्जुन से कहता है कि एक अल्लाह से तुम मांग लेना, एक अल्लाह से तुम अपने आपके झोली भरवा लेना। किसी चीज की तलाश करना है तो तुम उसी से तलाश कर लेना। प्यारे साथियों, समझ में आया कि लैलतुल कद्र की रात में अल्लाह से तलाश करो तो अल्लाह तुम्हें देगा। आयशा फरमाती है, अम्मा आयशा फरमाती है, जब अल्लाह के रसूल से मैंने सवाल कर फेंकी, अल्लाह के रसूल ने मुझे ये बताया कि नमाज पढ़ लेना, कुरान की तिलावत कर लेना, दुआएं पढ़ते रहना, गिड़गिड़ाना, रोना, अल्लाह से बार बार मांग तौबा करना और अपने गुनाहों को रद्द बराबर कर लेना, अपने गुनाहों को मिटा लेना, अपने गुनाहों को हटा लेना। प्यारे साथियों, इस महीने की अजमत और बरकत को अल्लाह तबारक व तआला की नबी ने फरमाते हैं। प्यारे साथियों, इस महीने की अजमत ये है कि ये रोजा जो है लैलतुल कद्र है, रमजान का जो रोजा है, ये ढाल बनकर कयामत के दिन खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे लिए सुपारिश करेंगे। तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाए जाएंगे, लेकिन ये ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे, दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अल्लाह इसने तो रोजा रखा था, सुबह सादिक से लेकर कुर्बान तक तेरे हुक्म से, तेरे हुक्म के बिना वो नहीं खाया था। उसके सामने बहुत सारे खाना रखा हुआ था, लेकिन उसने खाना छोया तक भी नहीं है। अल्लाह तू से माँ बात फरमा।
प्यारे साथियों, वो कल क़यामत के दिन रोजा तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। ये रात अगर तुम कुरान पढ़ते रहोगे, कुरान कल गवाही देंगे, ऐ अल्लाह इसने तो कुरान की तिलावत की थी, इसे तो मुझे तिलावत की थी, और मुझे तिलावत करना यानी तुम्हें पुकारना, ऐ अल्लाह तू उसे छोड़ दे, अल्लाह तुम्हें माफ कर देंगे। प्यारे साथियों, ये लैलतुल कद्र, ये लैलतुल कद्र की अजमत ये। अब आइए